beautiful morning to my lovely kids. Welcome back in your science class. I hope you all are fine and safe at your places. Dear kids, as we are dealing with chapter 10, Save Natural Resources, and we have studied about soil and water. Importance of soil and water, how we can save them and how precious they are for us. So today we are going to study about some more natural resources. Before going to the topic, I want to ask you something, beta. When we have studied about water, then we got to know that without food we can stay for 1 or 2 days, but without water we even can't stay for a single day. So, can you tell me a substance without which we even can't stay for a minute? Our survival is not possible even for a minute. Right, it is oxygen. And where oxygen is present? Correct, oxygen is present in air. So beta, our today's topics are air and fossil fuels. Today we will study about air and fossil fuels. Now as you have given a thought that we can't even survive for a single minute without oxygen, and where oxygen is in air. So how precious air is for us, you can understand this fact very well, and today we will study about it in detail. So come, let's begin the class. Dear kids, firstly we are going to study about air today. Air is a mixture of gases. Yes beta, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं. इस चीज़ को आप कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कैसे समझ सकते हो? यू नो दैट यू इनहेल ऑक्सीजन. आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो, आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हो. कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर निकालते हो अपनी बॉडी से. अब दोनों ही एयर जो हैं वो दोनों ही गैस जो हैं वो एयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं. जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो भी हम एयर से ही लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं वो भी हम एयर में ही करते हैं. सो from here we can understand that air is a mixture of gases. Except oxygen and carbon dioxide, there are many more gases present in air. Nitrogen, hydrogen, helium, many gases are there in air. That's why air is known as mixture of gases. It is present in the lower layer of atmosphere. Yes beta, where it is present? It is present in the lower layer of atmosphere. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. यस बेटा, जब एयर मूव करती है, जब तेज चलती है हवा, उसको हम विंड कहते हैं. एंड इट पोजेसेस अ लॉट ऑफ एनर्जी. यस, उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है. इसी विंड से विंड मिल चलते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. सो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं जिसमें बहुत सारी एनर्जी होती है. नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर. एयर की इम्पॉर्टेंस क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन एयर फॉर देयर सर्वाइवल. यस बेटा, एयर इज दैट नेचुरल रिसोर्स, एयर इज दैट रिक्वायरमेंट विदाउट विच वी इवन कांट सर्वाइव फॉर अ सिंगल मिनट. हम बिना सांस लिए, बिना ऑक्सीजन इनहेल किए 1 मिनट तक भी सरवाइव नहीं कर सकते. सो और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? एयर से मिलती है. सो वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन एयर फॉर आर सर्वाइवल, बिकॉज अगर एयर नहीं होगी तो हम ब्रीथ कहाँ से करेंगे? Green plants take in carbon dioxide present in the air to prepare their food. Yes beta, this thing you have studied in chapter 3 plants also. Air सिर्फ human beings के लिए ही नहीं, एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है. वाई? हाउ ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड? दे प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओनली. एंड एज आई हैव टोल्ड यू दैट कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो प्रेजेंट्स इन द एयर ओनली. दैट्स वाई एयर इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रीन प्लांट्स एज वेल. एयर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है.
Animal takes in oxygen for respiration. Yes beta, like human beings, animals also take in oxygen for respiration. Beta, what is respiration? This is a new word. What is respiration? The process by which we take in oxygen and gives out कार्बन डाइऑक्साइड, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन. उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं. जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन एंड इट इज सेम इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स बोथ. विंड इज यूज्ड टू रन विंड मिल्स फॉर जनरेटिंग एनर्जी. येस बेटा, विंड को हम यूज़ करते हैं, वो विंड मिल्स को रन करता है और फिर वो एनर्जी को जनरेट करता है. विंड इज़ यूज टू रन मिल्स फॉर जनरेटिंग एनर्जी. ये विंड फार्म्स हैं बेटा, ये हमारे विंड मिल्स हैं और विंड को हम यूज़ करते हैं. विंड जब आती है तभी ये विंड मिल्स चलते हैं और इनसे एनर्जी जनरेट होती है. नाउ बेटा, एयर पॉल्यूशन कैसे होता है? द प्रोसेस बाय विच द क्लीन एयर गेट्स कंटेमिनेटेड मतलब बेटा खराब हो जाना. वी हैव स्टडीड दिस वर्ड इन वाटर पॉल्यूशन ऑल्सो. कंटेमिनेटेड मीन्स खराब हो जाना. तो द प्रोसेस बाय विच द क्लीन एयर्स गेट कंटेमिनेटेड, वो प्रोसेस जिससे क्लीन एयर कंटेमिनेटेड हो जाती है विद अदर गैसेस, दूसरी गैसेस के साथ, डस्ट एंड केमिकल्स इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. दूसरी गैसेस बेटा जो हार्मफुल गैसेस होते हैं और डस्ट और केमिकल्स जब हमारी एयर के अंदर आके मिल जाती हैं तो उस प्रोसेस को हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं. बेटा ये जो चीज़ें होती हैं, जो सब्सटेंस होती हैं जो हमारी एयर को पॉल्यूट करते हैं, इनको हम पॉल्यूटेंट्स भी कहते हैं. पॉल्यूटेंट्स, the substances which pollute the air are known as pollutants also. pollutants ये जो harmful gases होती हैं, डस्ट है, स्मोक है, केमिकल्स हैं, ये सब हमारी एयर को पॉल्यूट करती हैं एंड दीज आर नोन एज पॉल्यूटेंट्स. क्यों हम इनको पॉल्यूटेंट्स कहते हैं? बिकॉज दे पॉल्यूट द एयर. नाउ बेटा, हाउ टू सेव एयर फ्रॉम बीइंग पॉल्यूटेड. हम अपनी एयर को कैसे बचा सकते हैं पॉल्यूटेड होने से? अननेसेसरी बर्निंग शुड बी डिक्रीज्ड. येस बेटा, जब हम चीज़ों को बर्न करते हैं तो हमारी एयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होती है और ये भी डिपेंड करता है हम कौन सी चीज़ों को बर्न कर रहे हैं. जब हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो उसमें से बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, जो बहुत ज़्यादा एयर को पॉल्यूट करती हैं. तो हमें ऐसी चीज़ों को बर्न नहीं करना चाहिए. हमें क्या करना चाहिए? हमें उन चीज़ों को रीयूज़ करना चाहिए. अगर हमारी प्लास्टिक की बॉटल्स या प्लास्टिक के कंटेनर्स खाली हो गए हैं तो उनको बर्न करने की बजाय हमें उनसे कुछ और यूज़फुल प्रोडक्ट बनाना चाहिए और उनको यूज़ करना चाहिए. बिकॉज उनको बर्न करने से हमारी एयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होती है. टॉल चिमनीज शुड बी प्रेजेंट ऑन फैक्ट्रीज. येस बेटा, फैक्ट्रीज के ऊपर टॉल चिमनीज होनी चाहिए सो दैट द डस्ट एंड स्मोक कैन बी मैनेज्ड. मोर एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड. येस बेटा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए. क्यों करना चाहिए हमें? क्योंकि ट्रीज़ एक बहुत जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वो यूज़ करते हैं, उसकी क्वांटिटी को वो एयर में से कम करते हैं और वो ऑक्सीजन देते हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है. ऑक्सीजन की क्वांटिटी को वो इंक्रीज़ करते हैं. दैट्स वाई वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज to get rid of air pollution. Using pollution free vehicles. Yes बेटा, we always check our vehicles कि वो pollution free हैं या नहीं. We always try to use pollution free vehicles only. Now बेटा, our next topic is fossil fuels. Fossil fuels क्या होते हैं बेटा? ये कैसे फॉर्म होते हैं? फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड. फॉसिल फ्यूल्स, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कोल, पेट्रोल, डीजल, जिनसे पेट्रोल और डीजल जिनको आज हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं.
जिनसे हमारे व्हीकल्स चलते हैं और हम जिनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किए जा रहे हैं बिना ये सोचे कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन को क्या ये उस क्वांटिटी में मिल पाएंगे जिस क्वांटिटी में हम इनका मिसयूज़ कर रहे हैं। सो ये फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं बेटा, बिकॉज ये नेचुरली ग्रो होते हैं, ये आर्टिफिशियली ग्रो नहीं होते हैं, ये नेचर की हेल्प से ग्रो होते हैं। एंड बेटा इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, इनको ग्रो करने का जो प्रोसेस है वो बहुत 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 ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी शुड यूज़ फॉसिल फ्यूल्स वाइजली। हमें उनको बहुत वाइजली, बहुत सोच समझकर यूज़ करना चाहिए, सो दैट इन आर upcoming time, in our future and for the next coming generation it will be saved, ताकि आगे आने वाली जनरेशन भी इसको यूज़ कर पाए। The remains of plants and animals which were buried deep under the अर्थ गॉट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स। यस बेटा, जो रिमेन्स होते हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के, जब हम उनको अर्थ के अंदर बेटा बुरिड मतलब बिल्कुल अर्थ के अंदर उनका दब जाना, जब वो डीप अर्थ के बहुत सारा अंदर जाकर दब जाते हैं तब वो बहुत सारे ईयर्स के बाद फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। कौन? प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स। रिमेन्स मीन्स जो प्लांट्स गिर जाते हैं, जो मीन्स और जो एनिमल्स मर जाते हैं, वो जब सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, अर्थ के अंदर चले जाते हैं, तो बहुत बहुत ईयर्स के बाद वो फॉसिल फ्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। दीज फ्यूल्स कंटेन अ लॉट ऑफ एनर्जी। यस बेटा, ये फ्यूल्स इसीलिए हमारे लिए इतने प्रेशियस हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है। सम ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। ये कुछ हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं बेटा, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। कोल को बेटा हम पहले कुकिंग के लिए भी यूज़ करते थे, और आपकी आयरन होती है ना प्रेस, जिससे आप क्लोथ्स आयरन करते हो, पहले के टाइम में उसको आयरन के अंदर भी कोल डलता था। चारकोल बेटा हम रोड्स को बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, एंड पेट्रोल एंड डीजल वी यूज़ इन आर व्हीकल्स। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बेटा, फॉसिल फ्यूल्स की इम्पॉर्टेंस क्या है? वी यूज़ फॉसिल फ्यूल्स मेनली टू जनरेट एनर्जी। यस बेटा, हम फॉसिल फ्यूल्स किस लिए यूज़ करते हैं? एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। दिस एनर्जी कैन बी यूज फॉर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ वर्क। ये एनर्जी जो है बेटा, फिर ये किसी भी तरीके के वर्क को करने के लिए यूज़ की जा सकती है। डिफरेंट फ्यूल्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। यस बेटा, हम डिफरेंट फ्यूल्स को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज कोल। द यूज़ ऑफ कोल इज़ टू रन द स्टीम इंजन। कोल को हम किस लिए यूज़ करते हैं? स्टीम इंजन को रन करने के लिए। पहले के टाइम में बेटा हम कोल को कुकिंग के लिए भी यूज़ करते थे। सेकेंड इज़ पेट्रोल। यस, पेट्रोल को हम व्हीकल्स रन करने के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड इज़ कैरोसिन बेटा, विच इज़ इन हिंदी नोन एज मिट्टी का तेल। कैरोसिन टू फिल इन लैम्प्स एंड स्टोव्स। यस बेटा, पहले जब हमारे पास चूल्हास नहीं होते थे तब हम स्टोव्स को यूज़ करते थे, और स्टोव्स कैरोसिन ऑयल की हेल्प से ही रन करते थे, और हम लैम्प्स में भी कैरोसिन ऑयल को यूज़ करते थे। आजकल ये सब यूज़ सिटीज़ और टाउन्स में बहुत कम हो गया है, बट विलेजेस में आज भी कैरोसिन ऑयल को लैम्प्स और स्टोव्स के अंदर यूज़ किया जाता है। नाउ फोर्थ इज़ एलपीजी, liquefied petroleum gas. It is also a fuel which we use for cooking. LPG liquefied petroleum gas, जिसको हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। आप सब ने ये सिलेंडर अपने घर में देखा होगा जिसके अंदर LPG होती है, जिसको हम अपनी कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। नाउ बेटा, हाउ टू सेव फ्यूल। कुकिंग ऑन अ स्लो फ्लेम सेव्स फ्यूल। हम जब भी कुक करते हैं, अगर हम अपनी फ्लेम को स्लो रखेंगे तो वो फ्यूल को सेव करती है। व्हीकल शुड बी केप्ट इन प्रॉपर कंडीशन एज ओल्ड एंड डैमेज व्हीकल्स कंज्यूम मोर फ्यूल। यस बेटा, हमें अपने व्हीकल्स की कंडीशन को हमेशा चेक करते रहना चाहिए और प्रॉपर रखना चाहिए, बिकॉज जो ओल्ड और डैमेज्ड व्हीकल्स होते हैं उनको ज़्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है रन करने के लिए।
फूड कुक्ड इन कवर्ड वेसल एम्प्लॉयज लेस फ्यूल. यस बेटा, अगर हम कवर्ड ढके हुए बर्तनों में अगर हम खाना बनाते हैं तो हमारा फ्यूल कम यूज़ होता है. अवॉइड हीटिंग द फूड अगेन एंड अगेन. बार बार फूड को हीट करना हमें अवॉइड करना चाहिए बिकॉज इससे हमारा फ्यूल वेस्ट होता है. Now what Rekha is saying here, my mom always covers the vessel while cooking. See, she is showing कि मेरी मम्मा हमेशा वेसल को कवर करती हैं जब वो कुकिंग करती हैं. Now you can also go in the kitchen and check that whether your mums are covering the vessel or not. If they are covering, then it is very good. If they are not covering, so you should ask them to cover the vessel and tell them also the importance of fuels in our life. Air pollution. We are all aware about the extent of pollution in our environment in the present times. Proper understanding of how pollution occurs and affects all the living things can help us deal with the problem of pollution in a better way. Air pollution can be defined as the addition of harmful substances called pollutants to the air. Let us see how the air gets polluted. A large number of industries work round the clock to produce things we use every day. This results in the release of a lot of smoke and harmful gases like sulfur dioxide, carbon monoxide, nitrogen dioxide, and hydrogen sulfide into the air. A huge number of motor vehicles, including trucks, buses, cars, and bikes, are used by us to travel and transport goods. These vehicles burn petrol and diesel and release toxic gases and chemicals into the air. Burning crackers, burning wood and coal to cook food, and burning of garbage are other activities that release lot of smoke and pollutants into the air. Another growing cause of air pollution is the extensive cutting of trees to obtain land for agriculture and building houses. Trees absorb carbon dioxide and release oxygen into the air, and with the loss of trees, amount of carbon dioxide in the atmosphere is rapidly increasing. Air pollution is very harmful for all living things, including us. It causes irritation and damages the eyes and the skin. It causes respiratory diseases like asthma, bronchitis, and pneumonia. Long-term exposure to polluted air can also damage the brain, lungs, heart, and kidneys. Did you know that the thick layer of fog common in the winter season is often a result of combination of smoke and fog? This layer is called smog, and it causes breathing problems in children and elderly people. So how do we deal with air pollution, which we know is so dangerous? There are several ways by which we can reduce air pollution. For a start, we can walk or use a bicycle to travel to nearby places. This will help reduce the use of motor vehicles which cause pollution. Use of eco-friendly fuels like CNG that cause less pollution should be encouraged instead of petrol and diesel. Use of fuels like LPG and biogas that do not produce smoke and harmful gases should be used for cooking
and heating purposes. Factories should be located far away from populated areas, and gases coming out from their chimneys should be treated before being released into the atmosphere. More and more trees should be planted, as they will help to reduce the amount of carbon dioxide in the air. We should all do our bit to prevent and reduce air pollution. Kids, today we have studied about air and fossil fuels. So your homework is to read page number 107 and 108 thoroughly. And beta, please take care of yourselves very much. Be safe, be at home only. We will meet soon. Till then, goodbye.